Now, till yesterday, we had finished around 3 or 4 reactions. We continue with the reactions further of amines. The first one among that is acylation, also known as acetylation, because one of the common reaction of acylation is acetylation. So let us see the definition first. When we replace hydrogen atom of actually any functional group, here we talk about amines, by acyl group, the reaction is called acylation. If the acyl group, which is most commonly CH3CO group, then the reaction is called acetylation. Whatever product we generate here is called nitrogen substituted amide. This reaction follows SN2 mechanism, and this acetylation can be done either with acetyl chloride or acetic anhydride. Now, before we study this complicated example, let me just give you a simplified version of what is acylation or acetylation as a basic principle, because we have not studied this reaction in detail before in any chapter. This particular reaction, acylation, I am taking an example of acetylation only here. You can make it generalized, but most commonly used example is acetyl group only. So this reaction usually happens with functional groups like alcohol, where we will react this with, suppose, CH3COCl. This reaction usually happens in presence of pyridine. So this particular hydrogen atom from here and this chlorine atom will be lost as HCl, and we will generate RCO connected to this COCH3 group. So when we replace, you can see here, hydrogen atom with COCH3 group, this reaction is termed as acylation. And in particularly CH3CO group is called acetylation. This is example 1. Suppose we are talking about current chapter, that is RNH2, which is amine group. We can react it with acetyl chloride. Now, there are 2 replaceable hydrogens you can see. NH2 has 2 replaceable, but at a time, only one can react. So suppose I replace this lower one, byproduct is HCl. This reaction is what we call as the acetylation reaction. So I'm just marking here which group I'm replacing. This hydrogen atom is getting replaced by this CH3CO group. Okay, this is one way of carrying out the reaction. Another way to carry out exactly same reaction, where I change the reagent now, is with acetic anhydride. So this is the reagent we use, anhydride. Reaction takes place in the same manner. Product also will be identical. What will differ is going to be the byproduct. So if I'm putting this CH3CO group here, so let me mark, this hydrogen is gone from here. So what should be our byproduct? CH3COOH. This process is called acylation or acetylation. So I have shown acylation of alcohol functional group for you, and even primary amine. And for primary amine, we are using 2 different reagents. Take a screenshot of this, and somewhere in your book, you please mention this basic thing. क्योंकि इतना सिंपल वहां पे नहीं दिया है, वहां पे डायरेक्टली एग्जांपल मैकेनिज्म सब मेंशन किया. Any doubt in this basic thing? It happened once before, where in fill in the blanks type of question was asked, wherein
दिस वॉज द फिल इन द ब्लैंक। ये सब्सटेंस आपको रिकॉग्नाइज करना था। एंड हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज दिस थिंग? फ्रॉम द बाई प्रोडक्ट आउट हियर। सो देखो, जब एसिटाइल क्लोराइड होता है तो आपका बाई प्रोडक्ट होगा HCl। जब अनहाइड्राइड होता है तो बाई प्रोडक्ट है एसिटिक एसिड। यू प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। Sir, can you repeat? I couldn't hear you. When we see, when you are using acetyl chloride as a reagent, this one, then your byproduct is HCl. And when acetic anhydride is used, byproduct is acetic acid. Okay, sir, got it. Got it? Okay, अभी ये जो कंपाउंड्स हम लोग ने क्रिएट किया, आई एम जस्ट क्लियरिंग दिस थिंग, एवरीवन हैज टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। यस सर। अभी ये जो हम लोग ने कंपाउंड, वी विल टेक एन एग्जांपल, सपोज वी कंसीडर C2H5, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉमेनक्लेचर हियर, HCOCH3। सपोज दिस इज अ कंपाउंड ऑब्टेन्ड, सो आप ओरिजिनल कंपाउंड को इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे C2H5NH2, और इस हाइड्रोजन को निकाल के हम लोग ने ये एसिटाइल ग्रुप रखा है। नाउ हाउ विल यू नेम दिस पर्टिकुलर कंपाउंड? You see, parent compound here is ethanamine, and to this ethanamine, this group is connected. देखो कौन सा ग्रुप है? 1 2। so 2 कार्बन वाला ग्रुप is called इथेनॉइल ग्रुप। इथेनॉइल, इसका कॉमन नेम है एसिटाइल, बट IUPAC नेम इज इथेनॉइल, विच इज कनेक्टेड टू द नाइट्रोजन एटम। इसी को हम लोग अगर कॉमन सिस्टम में लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं N एसिटाइल इथाइल अमाइन। ये एकदम सिंपल नेम है। ये भी नेम्स फॉलो होते हैं कॉमन वाले भी, लेकिन ये IUPAC आपको एज अ सिलेबस आपको पता होना चाहिए। कॉमन नेम इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इनफैक्ट ये दोनों नेम्स सबको क्लियर है कैसे लिखा है मैंने? परफेक्टली क्लियर। Yes. N एसिटाइल एंड N इथेनॉइल। ओके, अभी ये जो मैंने दोनों नाम लिखे हैं ना, ये मैंने अमाइन को पेरेंट कंपाउंड कंसीडर करके लिखे हैं। अमाइन इज माय पेरेंट कंपाउंड C2H5NH2। अभी आप थोड़ा इस कंपाउंड को उल्टा सोचो, इसी कंपाउंड को मैं उल्टा लिख रहा हूं अभी, CH3CONH। तो ये मेरा CH3 है, ये CO, ये NH, और यहां पे C2H5। हैव यू अंडरस्टूड हाउ आई हैव रोटेटेड द कंपाउंड? अभी इसमें पेरेंट कंपाउंड आपका होगा कौन सा? CH3CONH2 इथेनअमाइड इज द पेरेंट कंपाउंड। तो ये आपका पेरेंट कंपाउंड हो गया, और इसमें ये ग्रुप कनेक्टेड है नाइट्रोजन को। तो ये हो गया इसका ये IUPAC नेम, और इसको अगर IUPAC कॉमन सिस्टम में लिखना है तो N इथाइल, और ये कौन सा कंपाउंड है? एसिड अमाइड। ये हो गया आपका कॉमन सिस्टम में। सो देखने वाली चीज ऐसे है कि एक ही कंपाउंड को हम लोग दो अलग अलग साइड से पेरेंट कंपाउंड को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच वन सिंगल कंपाउंड जनरेट्स 2 IUPAC and 2 common system names. This is the most complicated part in the topic. तो आपको एग्जाम में ये चारों में से कोई भी एक नाम आएगा, they are talking about single same compound only, कुछ अलग नहीं है। Have you all understood this complication? ये सच में बोलो। So in the second part, that box that you made, CH3C double bond O NH2 और 2 कहाँ था? अरे ये इसके जगह H इमेजिन कर, समझा? NH2 ये पेरेंट कंपाउंड है, नहीं समझा? Sir, can you explain the first one again? Excellent. This is the original compound. ये कौन सा है? इथेनमाइड। इसके हाइड्रोजन को अगर मैंने निकाल दिया तो क्या बचेगा? देख,
और इस हाइड्रोजन को मैंने C2H5 से रिप्लेस किया, तो ये मिल गया। समझा बरोबर? यस। ओके, इसमें देखो यहाँ पे कैसे कंपाउंड मिला था हम लोग को, C2H5 NH2, सो दिस इज इथेनामाइन। इसके हाइड्रोजन को निकाल के हम लोग ने रखा यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप को, दैट इज इन आयुपैक इथेनॉइल कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, सो N इथेनॉइल इथेनामाइन, या फिर कॉमन। इज इट अंडरस्टूड? Any doubt in any of these four names, structure, anything? Take a screenshot of this. ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा जो मैंने अभी लिखा है, नॉट इन GTB, NCERT, नोवेयर, अवर नोट्स, नोवेयर। ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन किया, आपको ध्यान में रखना है। अभी आपको रिएक्शन में ये नेम्स वहां पे डायरेक्टली दिखेंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड एट दैट टाइम। सर एक बार फर्स्ट का वो नेमिंग वापस रिपीट करना, आयुपैक। पेरेंट कंपाउंड है कौन सा इसमें, मैंने बोला अमाइन, तो अमाइन, इसमें से अमाइन को इमेजिन कर C2H5 NH2, इसके जगह पे हाइड्रोजन इमेजिन कर, तो पेरेंट कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इथेनामाइन। फिर हम लोग ने ये दो ग्रुप का अल्काइल ग्रुप, सॉरी एसिटाइल ग्रुप रखा है, इथेनॉइल कनेक्टेड टू नाइट्रोजन। Yes, वन मोर एग्जांपल, और एक प्रैक्टिस के लिए देखेंगे। ये क्लियर करता हूं मैं, ये हो गया सबका स्क्रीनशॉट, तो मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। चल ये वाला सोचो, अभी इसको हम लोग पहले अमाइन पेरेंट करके आयुपैक में नाम देते हैं, फर्स्ट सिस्टम अमाइन वाला। तो N प्रोपेनॉइल, CH3NH2, तो ये पहला पार्ट हो गया मिथेनामाइन। N प्रोपेनॉइल मिथेनामाइन। हाँ करेक्ट, ये हो गया मिथेनामाइन। N देखो 1 2 3, प्रोपेनॉइल मिथेनामाइन, प्रोपेनॉइल मिथेनामाइन। देखो समझा इन नेम, तो मैं आगे जाता हूं। अभी उल्टा सोचो, उल्टा 1 2 3, यहां से सोच के देखेंगे तो क्या नाम आएगा, N मिथाइल, करेक्ट। 1 2 3 प्रोपैन अमाइड, तो ये अमाइन के सेंस में, ये अमाइड के सेंस में, दीज आर द नेम्स। टेक अ स्क्रीनशॉट, एडिशनल एग्जांपल। So I'm coming back to the reaction now. I hope everyone recollects what was acetylation now. अभी ये रिएक्शन सोचते हैं कैसे हुआ है। ये टेक्स्ट बुक में आपके मैकेनिज्म के साथ दिया है, मैंने आपको जब दिखाया था वो डायरेक्टली रिएक्शन दिखाया था। वॉच केयरफुली, C2H5NH2 CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड आई हैव टेकन हियर। तो पहले मैकेनिज्म में क्या हुआ देखो, ये NH2 वैसे ही था, और लेट मी मार्क दिस एरोज एंड ऑल, तो आपको शायद पता चलेगा। ये पाई बॉन्ड पहले गया यहां पर, तो ये हो गया देखो नेगेटिव चार्ज, और ये कार्बन ने, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने कार्बन पर अटैक किया, तो ये बन गया NCOCH3Cl। सो when this attack happened, pi bond shifted, we got a negative charge, bond is formed। पहले ये स्टेप समझ लो तो मैं आगे जाता हूं। Any doubt in this? So now in this intermediate, yes, follow the arrows. Lone pair of nitrogen will attack on carbon. अटैक किया मतलब उसने बॉन्ड फॉर्म किया। सो ये दो हाइड्रोजन है, वो यहां पर है देखो 1 and 2, and nitrogen has formed a bond with this carbon. Now to keep the valency of carbon 4, pi bond will shift on oxygen, so it will create a negative charge there temporarily.
अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये क्लोरीन जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, सो Cl has gone out, hydrogen will move out, so this is HCl, negative charge will come back, double bond. Is this all right? ये एक्सप्लेनेशन ऐसे नोटबुक में नहीं है, तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये मैकेनिज्म कैसे हुआ है मैंने एक्सप्लेन किया है। सर HCl कैसा है, ऊपर वाला H और नीचे ऊपर वाला वाला H, नीचे वाला Cl गया। नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स, अभी आप ये देखो फाइनल नेम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मैंने कौन से सेंस में लिखा है, अमाइड के सेंस में लिखा है। देखो इसी को हम लोग एन इथेनॉइल इथेन अमाइन भी लिख सकते थे, एन इथेनॉइल इथेन अमाइन, आप दोनों में से कोई भी एक सिस्टम एग्जाम में यूज कर सकते हो। This सर, is we have to another name it the same way ना, we have to count that at H same और way, हाँ हाँ हाँ, हाइड्रोजन को रिप्लेस करें। चलो और एक एग्जांपल इसका, CH3NH, अभी मैंने ये कंपाउंड लिया है सेकेंडरी अमाइन, इसको रिएक्ट करके, अभी डायरेक्टली लिखा है, मैकेनिज्म के साथ नहीं है। सो दिस इज सेकेंडरी अमाइन एसिटाइल क्लोराइड एंड द प्रोडक्ट व्हिच यू गेट। So in this you can form three names, na? हियर थ्री नेम्स कैसे One रे? with phenyl as the parent. हाँ हाँ One हाँ, with methyl. यस यस, एनिलीन करके देख सकते हैं, एनिलीन C6H5NH2 मतलब एनिलीन करके दे सकते हैं। इन्होंने जीटीबी में सिर्फ अमाइड करके ही फॉलो करके लिखा है नेम्स। चलो लास्ट में ये सेंटेंस शायद आपको पता चला होगा, एसिटाइलेशन इज ओनली पॉसिबल फॉर प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन, नॉट फॉर टर्शियरी, बिकॉज उसमें हाइड्रोजन ही नहीं है। अनदर एग्जांपल ऑफ एनिलीन्स एसिटाइलेशन, लेकिन इसमें कुछ अलग है। देखो क्या ग्रुप है, एक तो ये एरोमेटिक लिया है, एंड दिस कंपाउंड वी हैव टेकन इज बेंजोइल क्लोराइड, so we get benzamide here। अभी ये जो रिएक्शन है पर्टिकुलरली बेंजोइलेशन, एसिटाइलेशन अलग था, तो जब बेंजोइलेशन हम लोग करते हैं तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय टू साइंटिस्ट, तो उनका नाम है वहां पे शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। सो एसिटाइलेशन इज जस्ट अ रिएक्शन, बट इंस्टेड ऑफ एसिटाइल ग्रुप व्हेन वी टेक बेंजोइल ग्रुप then it is called shorten Bowman reaction। So can you go to the previous slide? So Okay, sir. aniline is taken in IUPAC. Aniline is accepted IUPAC, yes correct, फर्स्ट यूनिट में दिया था मैंने। ओके ये रिएक्शन आप कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान देना, अल्कोहल, फिनॉल एंड अमाइंस, ये तीनों का हम लोग जब बेंजोइलेशन करते हैं तो उसको कहते हैं शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। आई एम गिविंग यू वन समरी ऑफ शॉर्टन बॉमन सेपरेटली, which reactions are called shorten Bowman reaction। बाद में आप ये स्क्रीनशॉट ऐड कर देना। कौन से फंक्शनल ग्रुप हम लोग ने बोले वहां पे, एक तो है अल्कोहल, तो आई विल मेक वन कॉमन चार्ट लाइक दिस, C6H5 COCl बेंजोइल क्लोराइड, ये आपका कॉमन रिएजेंट है, और इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर सकते हैं, एक तो अल्कोहल के साथ, तो ROH अगर होगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, RO, यहां पे आएगा COC6H5, अल्कोहल का बेंजोइलेशन, अल्कोहल का शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। फिर फिनॉल, बेंजीन रिंग OH, तो इसका शॉर्टन बॉमन करेंगे, तो बेंजीन रिंग O
फिर CO और ये C6H5 और लास्ट में अभी देखा हम लोगों ने अमाइन का शॉर्टन बॉमन, सो RNH2। आप प्राइमरी सेकेंडरी किसी का भी कर सकते हो, मैं प्राइमरी का दिखा रहा हूं। प्लस HCl। These are all the shortened Bowman in your syllabus. So टेक्स्ट बुक में वो लोग एक ही अमाइन का देते हैं और लिखते हैं सेंटेंस में सभी के लिए, तो आपको तीनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। सो बेंजोइल ब्रोमाइड होता है? बेंजोइल ब्रोमाइड होता है, लेकिन उसका रिएक्टिविटी थोड़ा कम है, इसके लिए प्रैक्टिकली वो लोग हमेशा बेंजोइल क्लोराइड ही यूज करते हैं। बेंजोइल ब्रोमाइड इज नॉट यूज्ड इन एनी रिएक्शंस। You can take a screenshot of Schotten-Baumann reaction of all functional group. हफ्ता भर बीच में आपको जब छुट्टी है तो थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करना चालू करो, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक का अभी आपका रिवीजन चालू करूंगा। ऑल द चैप्टर्स रिएक्शंस हम लोग रिवाइज करेंगे, जैसे हम लोग वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ सिलेबस। फंक्शनल ग्रुप वाला अपना ये लास्ट चैप्टर चालू है, तो इसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक के अभी अपना चैप्टर बाकी है बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर, दोज आर अप्लाइड चैप्टर्स। सो फंक्शनल ग्रुप वाले चैप्टर्स अपने खत्म हो गए। आई विल स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ ऑल द रिएक्शंस। तो जैसे ही मैं कोई रिएक्शन बोलूंगा आपको फट से आना चाहिए इसका प्रोडक्ट क्या है, कंडीशन क्या है। तो अल्कोहल प्लस PCl3 व्हाट इट गिव्स, अल्कोहल प्लस SOCl2। तो आप हो सके तो अभी नेक्स्ट 8-10 दिन में रिएक्शंस को सिंगल रिएक्शन को रिवाइज करके रखना, दैट विल हेल्प यू। मैं रिवीजन के लिए आपके पास एक आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, हम लोग साथ में बैठ के रिवाइज करेंगे इसको। इट विल नॉट बी अ होमवर्क, आई विल डू इट इन द क्लास अलोंग विद यू। ओके, फिर Sir, when is the vacation that break? हाँ, अरे एक सेकंड बैच में मैंने बोला नहीं था। 7th September to 14th September is the vacation. 7th September Tuesday, so अपना 6th Monday को लास्ट लेक्चर होगा, and then again we will start on 14th evening Tuesday. चलो, we come to a very important, very common reaction of amines, primary amines के लिए specially. This is shown by aliphatic as well as aromatic amines, but primary compulsory. First sentence देखना, aliphatic, aromatic, primary amine. Condition क्या है? Chloroform, alcoholic KOH. We generate a compound, functional group isocyanide. Isocyanide is a modern name. इसका पुराना नाम है कार्बिल अमाइन. That's why the reaction is called carbylamine reaction. Secondary and tertiary amines don't give this test. So हम लोग प्राइमरी को बाकी दो टाइप से डिस्टिंग्विश सॉर्ट ऑफ कर सकते हैं. So what is this reaction? Very simple. RNH2 क्लोरोफॉर्म KOH. तो बैलेंसिंग रिएक्शन का देखना कैसे, मैं मार्किंग करता हूं पेन से. R, N and C. This is cyanide, isocyanide. फिर देखना इसमें 3 पोटेशियम 3 Cl, 3 के Cl. अभी क्या बचा है कैलकुलेट करो. 3OH 2 + 1 3H. So 3H 3OH, that is 3H2O. You can write any example what you want. R की जगह कुछ भी डालो, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, बेंजीन रिंग, साइक्लोहेक्सेन, कुछ भी डालो, सिर्फ वो R ग्रुप आपको रिप्लेस करना है. मैंने इथाइल से लिखा है, एग्जाम में कुछ भी अलग भी पूछ सकते हैं. इनको चाहिए बैलेंसिंग वाला चीज, स्क्रीनशॉट ले लेना. वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट रिएक्शन, कार्बिलामाइन. Next we have action of nitrous acid. What is first of all nitrous acid? हम लोग हमेशा नाइट्रिक एसिड सुनते हैं. Primary, secondary, tertiary react differently with nitrous acid. Nitrous acid is first of all unstable. It is a brown colored gas. So whenever we need it, we have to prepare it in situation by treatment of hydrochloric acid with sodium nitrite. So what is the reaction? NaNO2
व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है पाउडर, उसमें हम लोग ऐड करते हैं HCl, वी गेट ब्राउनिश कलर्ड फ्यूम्स HNO2। ये HNO2 हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के साथ रिएक्ट करेंगे तो वी गेट डिफरेंट रिएक्शन, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑल टुगेदर। सो लेट अस सी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन क्या होता है। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, if you react aromatic primary amine with nitrous acid in excess of HCl at 0 to 5 degree, we get benzene diazonium chloride. You had heard this earlier in Sandmeyer reaction, Yes. Gatterman reaction, aromatic में सुना था वही। तो ये हम लोग कंडीशन ध्यान में रखना, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया अपना एरोमेटिक प्राइमरी। फिर एलिफेटिक के लिए अलग रिएक्शन है, एलिफेटिक प्राइमरी एकदम अलग रिएक्शन। दे विल रिएक्ट इन कोल्ड कंडीशन टू फॉर्म अल्कोहल। सो फॉर एग्जांपल RNH2, nitrous acid, NH2 group in one step converts into alcohol. ये फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन ध्यान में रखना कि प्राइमरी अमाइन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू यूज नाइट्रस एसिड। ethylamine becomes ethyl alcohol. The distinguishing test here is aliphatic primary amine will liberate bubbles of nitrogen gas, which secondary and tertiary will not show. Go through this slide before I go for secondary and tertiary now. Secondary aliphatic, now they react in this manner. ये है आपका R2NH with this one, nitrous acid. So if I show you the marking here, you can clearly understand H and OH are breaking down here as H2O. So remove hydrogen and place NO group over there. अब ये जो NO ग्रुप है इसका नाम है नाइट्रोसो ग्रुप। देखो NO2 हम लोग हमेशा यूज करते हैं, वो है नाइट्रो, और NO ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसो ग्रुप। इट्स अ आइसोमर, इट्स अ ग्रुप विथ लेसर ऑक्सीजन, सो वी राइट द नेम एज N-nitroso and the amine name. So one example I have shown here, diethylamine with nitrous acid, so N-nitroso diethylamine. ये कॉमन सिस्टम है, अगर आपको IUPAC में लिखना है आप अमाइन का नाम IUPAC में लिखो, N-nitroso remains as it is. This N-nitrosoamine, what you get on warming with phenol and sulfuric acid gives green colored solution, which if you further react with NaOH turns deep red color and then little pale red color. This reaction is called Lieberman's nitrosoamine reaction. Last paragraph is in JEE and NEET syllabus, not given in GT. नीट में एक बार और जेई में 2 बार इस पे क्वेश्चन आया है, लिबरमन नाइट्रोसोमाइन रिएक्शन। अभी आप सोचोगे ये किसके लिए टेस्ट है, कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए? इट्स अ वेरी फनी पार्ट, दिस इज अ टेस्ट फॉर फिनॉल एंड नॉट फॉर अमाइन। तो फिनॉल को डिटेक्ट करने के लिए एक्चुअली ये टेस्ट करते हैं। आप बीच में देख सकते हैं फिनॉल यहां पर है। If you see reference books, they write this test not in this chapter, but in phenols. Last, tertiary amine. हाँ बोलो। So can R be different? R भी कुछ भी चलेगा, R कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिथाइल मिथाइल अमाइन भी चलेगा, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। रिएक्शन इज फोकसिंग ऑन NH ग्रुप, तो वो आपका इंपॉर्टेंट है। R आप 2 अलग लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोकार्बन ग्रुप जो होता है ना, इट्स अ इनर्ट ग्रुप, तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता है रिएक्शन में, तो उसको कोई मतलब ही नहीं होता है। लास्ट, एलिफेटिक टर्शियरी अमाइन कैन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म सोल्यूबल सॉल्ट। तो बेसिकली एक्चुअली स्पीकिंग रिएक्शन होता ही नहीं है। ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, वो लोन पेयर लुईस बेस करके हाइड्रोजन को गैदर करेगा।
सो यू कैन सी जैसे कल हम लोग ने HCl H2SO4 का रिएक्शन किया था, ये फॉर्म हो गया आपका NH+, बाहर का पार्ट NO2-। अभी ये कोई रिएक्शन नहीं है, दिस इज जस्ट अ सॉल्ट फॉर्मेशन, दैट इज व्हाई यू कैनॉट एक्चुअली फाइंड आउट, you can actually use this like a distinguishing test. अगर aromatic tertiary amine हम लोग यूज करेंगे तो it's a totally different reaction. NO-nitroso group gives a para substitution. So here tertiary aromatic happens at para position nitroso group. Next we have is Hinsberg reagent test. Hinsberg reagent, first of all, is benzene sulfonyl chloride. तो क्या कंपाउंड है दिखा रहा हूं यहां पे, बेंजीन ग्रुप, SO2 ग्रुप कनेक्टेड टू Cl. दिस इज कॉल्ड benzene sulfonyl chloride, पॉपुलरली नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट. अभी ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट है ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सबके साथ अलग अलग बिहेव करता है. That's why this can be used as a distinguishing test. थोड़ा ध्यान से देखना, little bit complicated reaction. First, आराम से देखो, don't see everything together, you will not follow anything. Pay attention. This is our NH2, we are taking primary amine. This is Hinsberg reagent. First step is, this Hinsberg reagent का hydrogen and Cl are moving out as HCl. So let me go on marking. This one H and one Cl lost as HCl. So you can see Hinsberg reagent, SO2 connected with NHR. ये हाइड्रोजन को स्पेशली मार्क किया है क्योंकि ये रिएक्टिव हाइड्रोजन है, दैट इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन. नेक्स्ट स्टेप में जब आपके पास OH ग्रुप होगा, यही NaOH जब रहता है, so at that time what happens is this hydrogen is lost, N minus and Na plus. This, when you treat further with HCl, once again regains the hydrogen here. So first primary amine reacts with it, forms water soluble salt, and then produces water insoluble precipitate. This is called Hinsberg reagent test for primary amine. So can you explain the last part? This the starting also that the arrows. मैं फिर से अलग से आपको रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा, एक बार फिर ये सिर्फ देख लो. What is the line in the left, like connected to benzene? I'm coming to that. I'm coming to that. Give me a moment. पहले रिएक्शन देखो. I'm coming to the variations of it. So here first of all hydrogen lost. तो कैसे हुआ रिएक्शन देखो आपका ये वाला NRH. So when hydrogen lost, it gave the electron pair to nitrogen. ये वो नेगेटिव चार्ज है. तो अगर आपके पास सपोज NaOH था तो वो Na कैटायन यहां पे प्रेजेंट है. ये हो गया आपका पहला सब्सटेंस. सिंस इट इज एन आयोनिक कंपाउंड, इट विल बी वाटर सोल्यूबल. नेक्स्ट स्टेप में जब HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन फिर से यहां पे आ जाएगा और क्लोराइड एंड Na विल मूव आउट एज NaCl. इज इट ऑल राइट? ये समझा बरोबर से? Yes. GTB में इसका वर्जन थोड़ा सा अलग है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये पहले समझ लो. Then I will show you GTB a little different version. एक बार फिर से आराम से रिएक्शन देख लो, then I will go further. So we take a screenshot. If you want, you can take a screenshot of this. Yeah, additional things. So what's the difference between the middle ka part, which is in the box bracket, and the last This product? is Then unstable. No, it is the same thing. Exactly same thing you get regain over here. ये लेकिन क्या होता है, ये हम लोग को प्रैक्टिकली नहीं मिलता है. दिस इज अनस्टेबल. सो व्हाट वी सी इज डायरेक्टली दिस वन. सो जब हम लोग ये और ये रिएक्ट करेंगे तो अपना पहला प्रोडक्ट ये, फिर HCl डालो, फिर ये हम लोग को मिलता ही नहीं है.
So that's because of the chain reaction over. That's like a chain It is reaction. it's like a mechanism shown here. This is like a mechanism. What we Okay. generate is like this. तो आप प्रैक्टिकली सोचो, आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने अमाइन लिया, उस पे आपने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, तो पहले क्या मिलेगा? क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट। फिर आप उसमें HCl पोर करोगे तो क्या मिलेगा? प्रेसिपिटेट मिलेगा, ये वाला। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन टेस्ट। प्रैक्टिकली ऐसे दिखता है। लेट अस सी So you can सेकंडरी। use any OH का group. NaOH और KOH दोनों में से एक यूज होता है। NaOH यूज करोगे तो Na, KOH यूज करोगे तो यहाँ पे K। दैट्स द ओनली डिफरेंस। मैंने नोट्स में KOH करके दिया है, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। तो आप कोई भी KNA डजंट मेक अ डिफरेंस। अभी सेकेंडरी अमाइन का देखो क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। Cl and H, I'm sorry, this Cl and this H gone, सीधा ग्रुप कनेक्ट हो गया। क्या डिफरेंस है देखो पहले और इसमें? यहां पे आपके पास अभी हाइड्रोजन नहीं है, तो आपको सीधा ये प्रेसिपिटेट मिलेगा। सो जो आपने पहले टेस्ट किया था KOH के साथ, सोल्यूबल मिला, फिर आपने HCl डाल के उसको प्रेसिपिटेट बनाया, ये सब चीज इसमें होगा ही नहीं। आपको सीधा सीधा प्रेसिपिटेट ही मिलेगा जैसे ही आप ये रिएक्शन KOH के साथ करोगे। एंड फाइनली टर्शियरी अमाइन विल नॉट रिएक्ट ओनली बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हियर। मैं आपको एक, हाँ बोलो। In the first one, the primary amine, I'll so go back. then I'll the go. left hand, हाँ, the line on the left of the अरे benzene is जस्ट रुक the रुक जरा 2 मिनट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इज दिस ऑल राइट? आई एम टेकिंग नाउ एग्जाम्पल हियर, लिटिल मोर एडिशनल थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर Hinsberg reagent common. This is the format in your GTB. तो आप HSC में, इनफैक्ट जेई के लिए भी इतना याद रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा पहला है हिंसबर्ग रिएजेंट का टेस्ट। आई एम रिवाइजिंग एवरीथिंग, सो वॉच प्रॉपरली। जिनको टफ लगा था ये आराम से देखना। सो सबसे पहले हम लोग ने रिएक्ट किया, सपोज RNH2. So what we generate in the beginning, this one will become SO2 N minus R। ये अगर NaOH या KOH के साथ है तो ये K प्लस। ये मुझे मिलेगा सोल्यूबल कंपोनेंट। इसमें हम लोगों ने अगर HCl पोर किया तो वी विल जनरेट फाइनली कंपाउंड and this will be insoluble precipitate। अगर आप यहां से यहां पे डायरेक्टली देखते हो तो बेसिकली रिएक्शन सिर्फ इतना ही हुआ है, H and Cl are lost and we got this compound. Is this understood? So this is a test for something, or is this like a Yeah, I'm coming to that. formation? एक second, एक reaction देख लो, then I'll revise it again. Now if you react it with secondary amine, then what we generate? SO N H, sorry, R and R. This will show only one step. This is directly insoluble substance obtained, precipitate obtained. So there are no two steps obtained here.
And last, if you take up tertiary amine, since there is no hydrogen, we say there is no reaction. So you can see the behavior is different. Behavior is first getting soluble, then getting insoluble, primary amine. Directly getting insoluble, secondary amine. Not reacting at all, tertiary amine. This is called distinguishing test. Practically अलग अलग बिहेवियर तीन अमाइंस आपको देंगे. ये पहली बात सबके समझ में आ गई. एनी डाउट इन दिस? Is this all right? Perfectly clear? Yes, sir. अभी ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. Then I will show you that dash वाला thing. What was it? Done. Now see the variation. See the variation. हिंसबर्ग रिएजेंट इज अ वेरी पॉपुलर केमिकल. वो सभी लैब में भी रहता है. हम लोग बीएससी में प्रैक्टिकल में ये टेस्ट कॉलेज में करते हैं. इसके जगह पे ये थोड़ा कॉस्टली केमिकल है. और दूसरी बात है कि जब भी हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते हैं तो दिस इज क्वाइट अ वेरी इरिटेटिंग सब्सटेंस फॉर आवर आईज. जैसे ही लैब में ये ओपन होगा सबके आंखों में से पानी आना चालू होता है. लैब में तुरंत समझ में आता है किसी ने हिंसबर्ग रिएजेंट का बॉटल खोला है. इतना सेंसिटिव केमिकल है. तो इससे थोड़ा लेस सेंसिटिव केमिकल है जहां पे यहां पर हम लोग मिथाइल ग्रुप को अटैच करते हैं. नो डिफरेंस हैपेंस इन द टेस्ट. ओनली थिंग दिस इज कॉल्ड पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड. ये प्रैक्टिकली सब जगह मिथाइल ग्रुप वाला ही यूज होता है, लेकिन मिथाइल की जगह इथाइल प्रोपाइल भी हो सकता है. प्रैक्टिकली दे यूज पैराटोल्यूइन. अभी आपको समझा होगा कि जो वहां पे मैंने रिएक्शन लिखे थे प्रिंटेड, उसमें ये डैश का मतलब क्या था. हैव यू ऑल अंडरस्टूड नाउ? यस सर. तो आपके जीटीबी में उन्होंने ये विदाउट मिथाइल का रिएक्शन लिखा है और फिर बोला है कि अगर पैराटोल्यूइन है तो उसके लिए रिएक्शन लिखो. So reaction remains same, no change at all, just add a methyl group on the para position. But usually that substance is not called Hinsberg reagent. It is just called paratoluene sulfonyl chloride. So Hinsberg मतलब without methyl group. GTB में उन्होंने ये स्टेप बीच का नहीं दिया है, डायरेक्टली ये फाइनल दिया है. तो उन्होंने सिर्फ एक एक लाइन में मतलब ये और ये डायरेक्टली ये, फिर यहाँ पे ये ऐसे लिखा है. और सोल्यूबल है, नॉन सोल्यूबल है, बस इतना ही लिखा है. Sir, in exam, how do you ask? This usually comes like a short note. What is the action of Hinsberg reagent on primary, secondary, tertiary amine? बड़ा क्वेश्चन, 2 या 3 मार्क के लिए. या फिर Hinsberg reagent on ethyl amine. तो आपको देखना है इथाइल अमाइन लिखा है तो प्राइमरी अमाइन है, तो प्राइमरी का रिएक्शन लिखो. अलग अलग फॉर्मेट में आ सकता है क्वेश्चन. Sir, in competitive exam, they ask. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन. दे विल आस्क एज दे विल एम्फसाइज मोर ऑन सोल्यूबल इनसोल्यूबल पार्ट ऑफ इट. सो ट्रू और फॉल्स में इथाइल अमाइन ऑन हिंसबर्ग रिएजेंट फॉलोड बाय एक्शन ऑफ एसिड प्रोड्यूसेस इनसोल्यूबल कंपाउंड. ट्रू स्टेटमेंट. इनसोल्यूबल की जगह सोल्यूबल लिखा तो रॉन्ग स्टेटमेंट. इज इट अंडरस्टूड? शैल आई गिव यू इन दैट फॉर्मेट वंस? एक बार दे दूं वैसे फॉर्मेट में? Yes, यस sir. सर. एक सेकंड, मैं आपको वो क्लियर स्क्रीन करके टेस्ट के फॉर्म में देता हूं आपको, तो आपको वो याद रहेगा, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वैसे याद रखना जरूरी है. हिंसबर्ग रिएजेंट. सो हिंसबर्ग रिएजेंट, मैं खाली HR लिख रहा हूं. हिंसबर्ग रिएजेंट प्लस प्राइमरी अमाइन. So when we treat it in presence of KOH, you will get soluble salt. और जब हम लोग इसको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो we will get a precipitate. 2 स्टेप में रिएक्शन होगा. फिर हिंसबर्ग रिएजेंट प्लस सेकेंडरी अमाइन.
So with KOH, it will form here and here itself precipitate. अगर इसमें HCl ऐड किया तो फर्दर नो रिएक्शन, मतलब प्रेसिपिटेट का प्रेसिपिटेट ही रहेगा. एंड हिंसबर्ग रिएजेंट प्लस टर्शियरी अमाइन, KOH डाल, HCl डाल, पानी डाल, कुछ भी डाल, नो रिएक्शन. आई होप नाउ द थिंग्स आर क्लियर. डिस्टिंग्विश कैसे हुआ है समझा सबको. प्रेसिपिटेट सेकंड स्टेप में है, प्रेसिपिटेट फर्स्ट स्टेप में है, नो रिएक्शन. This is the way you will need it for competitive exams. So, बोल. so benzene sulfonyl chloride, does it have similar effect like tear gas? It's not tear gas. Some of the chemicals, they act like on lacrimatory glands, but tear gas lacrimatory gland effect is too much. There are many chemicals which work on our lacrimatory glands. They make you tear, but proper tear gas is different. That's nitrochloroform. Yes. There are other chemicals which work on our eyes like that, but they are not used as tear gas. तो ये रिएक्शन जो मैं कर रहा हूँ अल्डिहाइड कीटोन वाला, आई थिंक दिस इज नॉट देयर इन योर जीटीबी इफ आई एम करेक्ट. ये शायद नहीं है टेक्स्ट बुक में. या दिस इज एडिशनल ओनली फॉर जेई एंड नीट पीपल. So can you go to the mind tool? Thank you, sir. This is a very easy reaction. Read it first. Aliphatic and aromatic primary amine can react with aldehyde as well as ketone. Catalyst needed is little bit of acid. They form chemical called azomethine, popularly known as Schiff's base, also known as anil. Three names for the same chemical. Reaction ऐसे है. RNH2 primary amine aldehyde. ये H2O देखो मैंने जो रेड से मार्क किया है, that will go as byproduct. This is what we call as Schiff's base. So one of the example I have written here. आप कोई भी प्राइमरी अमाइन लेके इसका रिएक्शन दिखा सकते हो. तो ये इसका जनरल नेम है Schiff's base. It's another one with aniline. H2O is lost and we get benzylidene aniline produced. These chemicals are of great use in dye industry. Dyes, many colors and dyes are made from these chemicals, so they are of great use. If you try to react this with secondary amine, then you get different chemicals. Watch here. ये आपका है secondary amine. ये mechanism से साथ दिखा रहा हूँ, तो जरा understand करना carefully. ये है आपका RNHR. This is aldehyde और ketone taken. ओके, ग्रुप कलर पे ध्यान देना. ये ग्रीन वाला पार्ट जो है वो अल्डिहाइड है सेक्शन, रेड वाला इज अमाइन. तो इसमें क्या हो रहा है, जस्ट वॉच द एनिमेशन. फर्स्ट दिस ऑक्सीजन, दिस हाइड्रोजन, दिस H, दे आर लॉस्ट एज H2O. तो अगर आपको विदाउट मैकेनिज्म सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट लिखना है तो आप H2O को डिलीट करके प्रोडक्ट लिख सकते हो. तो कैसे है देखो, ये है आपका ग्रीन कलर का अल्डिहाइड और ये RNR यहां पे अटैच हो गया. लेकिन मैकेनिज्म के साथ क्या हो रहा है देखो, लोन पेयर विल अटैक ऑन दिस कार्बन, दिस बॉन्ड शिफ्ट्स हियर, दैट्स व्हाई वी गेट ए डबल बॉन्ड. दैट इज हाउ द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड. आप सिंपल रिएक्शन भी याद रख सकते हो विदाउट मैकेनिज्म ऑल्सो, इट्स फाइन, यू कैन रिमेंबर इट दैट वे. प्लीज रीड द होल पैरा. HSC वालों के लिए ये रिएक्शन सेट नहीं है, so don't get tensed. So how is the enamine obtained? Huh? So how is the enamine obtained? En is double bond. Yes. Amine. So enamine is the name. यहाँ पे इसलिए मैंने डैश डाल के स्पेलिंग लिखा है enamine. जैसे हम लोग इनॉल बनाते हैं टॉटोमेरिज्म में, वैसे ये enamine है. This is the general name of this functional group.
So I meant how did the double bond get? By shifting of this bond. When you remove this hydrogen and oxygen to balance the valency here, double bond comes. So you remove O and H, na? Yes, O and H ये H. तीनों निकल गए. तो देखो ये नाइट्रोजन अटैच होगा इस कार्बन को, ये वाला. तो ये जो RNR है ये यहाँ पे अटैच हो गया ऊपर. फिर इस कार्बन के ये जो दो बॉन्ड्स है वो यहीं पर है, वो चले नहीं गए. So sir, if it dissolves in water again, so it goes back. Yeah, हाँ, because it's by no, reversible. it's not like that. अगर pH एसिडिक जोन में है तो फॉरवर्ड रिएक्शन. बैकवर्ड करने के लिए हम लोग को pH अल्कलाइन जोन में लेके जाना पड़ेगा. H3O का मतलब है एसिडिक. तो फॉरवर्ड रिएक्शन अगर एसिडिक में है तो बैकवर्ड करने के लिए बेसिक जोन में. तो इफ यू रिएक्ट विद अ बेस देन यू माइट गेट these two things separately. But they are not unstable compounds, they are stable compound. अगर चाहे तो हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं उसको. Another example of this, इनामाइन प्रोडक्शन का. अभी यहाँ पे हम लोग ने ये अल्डिहाइड लिया है. So and this aldehyde and this is a secondary amine. तो कलर देखो ब्लू कलर है जो अल्फा हाइड्रोजन, oxygen and this secondary amine they are lost as H2O. Then you get enamine produced. When I give you this PDF, जरा बैठ के शांति से ये रिएक्शन एक बार स्टडी कर लेना. नीट में ये रिएक्शन कभी भी आज तक नहीं आए, लेकिन जेई वालों को ये पूछे रिएक्शंस एल्डिहाइड कीटोन वाले. These Schiff's base, what you get, they can be reduced further to amines also. तो अगर हम लोग ने अल्डिहाइड से जो मिला है Schiff's base उसको रिड्यूस किया तो वी गेट सेकेंडरी अमाइन. जो कीटोन से बना है वी विल गेट टर्शरी अमाइंस. सो एग्जांपल देखो इसका, ये आपके पास है इनामाइन. इसको हम लोग ने रिड्यूस किया हाइड्रोजन निकेल के साथ, तो ये बनेगा आपका NHCH2 विच इज सेकेंडरी अमाइन. और अगर ये कीटोन वाला हम लोग ने रिएक्ट किया तो ये बनेगा अपना टर्शरी अमाइन. बेसिकली कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड करना है. तो यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. So why can't we get the primary amines? कैसे मिलेगा? नाइट्रोजन तेरा सेंटर में है, यहाँ पे. Oh. नाइट्रोजन इज नॉट इन द टर्मिनल, सो विल नेवर गेट अ प्राइमरी अमाइन हियर. कंडेंसेशन है ना रिएक्शन का, तो नाइट्रोजन प्रोडक्ट के बीच में है, so you can't get a primary amine. Last part of the topic, HSC students, if you are sleeping, please come back. This is your HSC part now, मतलब common syllabus. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. अभी हम लोग जब हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते तो वी आर ऑलवेज सेइंग ऑर्थो पैरा, पैरा मेजर प्रोडक्ट. ये सब चीज अनफॉर्चुनेटली अमाइंस में नहीं होता है. यहाँ पे थिंग्स आर लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, so you need to do this in little more details. It's a little complicated section. First of all, aniline molecule can show a resonance. ये हम लोग ने कल भी देखा था, aniline का resonance. HSC वालों के लिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 मार्क के लिए बोर्ड्स में आता है, ड्रॉ करने के लिए, याद रखना. अभी आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो यू विल सी नाइट्रोजन एवरीवेयर हैज अ पॉजिटिव चार्ज. Ortho and para positions have negative charge. So electrophile E plus can attack on ortho and para positions. That means as usual para product will be major product. Ortho product हमेशा कम रहता है. In other words, amine group can be called as ortho para directing group. Basic number 1 याद रखना इसमें. We talk about bromination now. पहला reaction bromination. So understand now the complication. Amine group is a strong activating group. That means when halogenation happens, in absence of catalyst also, reaction takes place at all the 3 positions. You will recollect this reaction just like phenol. 2,4,6-tribromophenol था, वैसे ये एनिलीन है.
नाउ व्हाट इज द लिमिटेशन हियर? लिमिटेशन इज हम लोग को ऑर्थो या प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट यहाँ नहीं मिल रहा है, बिकॉज अमाइन ग्रुप इज सो मच एक्टिवेटिंग ग्रुप, सिंगल ब्रोमिनेशन सीम्स टू बी लिटिल डिफिकल्ट। तो उसके लिए हम लोग को सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो द सॉल्यूशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइन ग्रुप को हम लोग एसिटाइलेट कर लेते हैं। आज का पहला रिएक्शन दिन का एसिटाइलेशन। फिर एसिटाइलेशन करने के बाद उसको हम लोग हैलोजेनेट करेंगे। आराम से देखो क्या हो रहा है। ये आपका है अमाइन ग्रुप। अमाइन ग्रुप को हम लोग पहले ट्रीट किया एसीटेट अनहाइड्राइड के साथ। ये आपका हो गया एसिटाइल ग्रुप। अभी डिफरेंस क्या है? अमाइन ग्रुप इज अ रिएक्टिव ग्रुप, बट एसिटाइलेटेड अमाइन ग्रुप इज अ लेस रिएक्टिव ग्रुप। ये ग्रुप बल्कि है, इसके वजह से 2,4,6 पे रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ रिएक्शन होगी पैरा पोजीशन पर। बाद में इसको ब्रेक डाउन करके फिर से अमाइन बना दो। तो अपनी रिएक्शन कहां हुई है देखो। ये तो पहले हम लोग ने इसको एसिटाइलेट किया, ब्रोमीन इंट्रोड्यूस किया, फिर इसको फिर से यहां लेके गए। इज द ट्रिक अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. दिस इज गिवन इन योर जीटीबी एज अ प्रॉब्लम, हाउ टू डू इट। मैंने यहाँ पे रिएक्शन आंसर दिया है, उन्होंने वहां पे एज अ प्रॉब्लम दिया है पेज 295 पर। मैंने आपको सीधा रिएक्शन करके प्रेजेंट किया है। सेकंड वी कम टू नाइट्रेशन। अभी नाइट्रेशन में कुछ अलग ही प्रॉब्लम है, देखो क्या होता है। एनिलीन ऑन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 HNO3 मिक्सचर, हम लोग को पहली बार 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, पैरा, मेटा एंड ऑर्थो। हम लोग ने देखा था हमेशा ऑर्थो पैरा मिलता है, मेटा कभी मिलता ही नहीं था। पहली बार मेटा मिल रहा है। ऊपर से मेटा मिल रहा है लेकिन इतने सारे क्वांटिटी में मिल रहा है, 47%। तो अगर आप ऑर्थो को निकाल दोगे तो लगभग देखो पैरा मेटा इज ऑलमोस्ट इन इक्वल अमाउंट, स्मॉल डिफरेंस 3-4% का। that means this is a little problematic reaction. मेटा क्यों मिलता है मैं बाद में आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल बेसिक रिएक्शन समझ लो। So the problem is 2 problems here. Number 1, we are getting unwanted meta substance. Ortho is very less. Number 2, para is not obtained in larger quantity. So to solve this problem, हम लोग को फिर से वही करना पड़ेगा। First, NH2 को पहले रिएक्ट किया, इसको बना दिया एसिटाइल ग्रुप, नाइट्रेशन करके यहां पे लेके आए नाइट्रो ग्रुप, फिर इस ग्रुप को डिलीट करके बना दिया NH2 ग्रुप। Is this understood? Everyone followed this perfectly clear? Yes. Now we will explain why we get that particular meta group. I will explain it separately. ये नोट्स में नहीं है, जेई में एक बार और नीट पे एक बार ये क्वेश्चन आया था। अपना रिएक्शन है एनिलीन के साथ, केयरफुली समझ लो, जीटीबी का आंसर नहीं है, दिस इज फॉर जेई एंड नीट पीपल, 1 लाइन ओनली एक्स्ट्रा। हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। दैट मीन्स वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ H plus from this produced. So there will be one side reaction occurring. तो अपना पेरेंट रिएक्शन बेसिकली क्या है? पेरेंट रिएक्शन इज दिस, नाइट्रेशन करो तो NH2 और ऑर्थो पोजीशन और साथ में पैरा पोजीशन। तो ये आपका हो गया एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स। अभी हो जाता है एक साइड रिएक्शन। ये H प्लस एनिलीन के साथ रिएक्ट करके बनाता है एनिलीनियम आयन। ये है एनिलीनियम आयन। एंड द फनी थिंग इज एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जब ये कंपाउंड आपका प्रिपेयर हो रहा है तो प्रोड्यूस आपको प्रोडक्ट मिलेगा
nitro group at meta position. So you are getting ortho, para, and meta. 51%. Large amount is converted into anilinium, so 47%, and poor is 2%. Is this logic clear? Why are we getting meta? Yes. Why we get meta? आपके स्टैंडर्ड बुक्स में ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके रखना। आप देख सकते हैं एरोमेटिक के रिएक्शन यहाँ पे कितने अलग है रेगुलर फिनॉल क्लोरोबेंजीन के। चलो कैन वी गो अहेड, स्क्रीनशॉट हो गया। Yes, sir. दिस वाज नाइट्रेशन। वी कम टू सल्फोनेशन, ये इसमें कुछ और अलग ही मामला है। स्टेटमेंट बाद में लिखना, रिएक्शन देखो। NH2 ग्रुप सॉरी रिएक्ट्स विद H2SO4। अभी H2SO4 को आप इस तरह से याद रखो, H प्लस HSO3 माइनस, आई एम सॉरी HSO4 माइनस। तो आप ये NH2 को H प्लस के साथ ऐड करो, बन जाएगा आपका NH3 प्लस, बाजू में एनायन HSO4। फिर यहां का ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन, यहां का ये हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन डिलीट करो H2O, एंड यहां से बचेगा क्या फिर HSO3 माइनस। Bring it over here. So this has become NH2SO3H. मैं रिपीट कर रहा हूं आगे जाने से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन यहां पे ऐड होगा, बनेगा NH3 प्लस। एनायन विल सिंपली ज्वाइन HSO4 माइनस। स्टेप 2 जो यहां नहीं दिख रहा है, ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन, मूव आउट एज H2O. This has become HSO3 minus now, which will now come at para position. Last step, ये है बेस और ये है एसिड. So internally there is a hydrogen transfer occurring. NH3 plus SO3 minus. Dipolar ions in German language are called Zwitter ion. बायो स्टूडेंट ने शायद ये वर्ड सुना होगा। Yes, biochemistry. हाँ, अमीनो एसिड्स चैप्टर में अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट एज Zwitter आयंस। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ऐसे कुछ वर्ड शायद बायो वालों ने शायद सुने होंगे। गो थ्रू इट, एनी डाउट? So this exists in the second. लास्ट वाला Last वाला. हाँ। So then how is that like reversible? Like you make a basic. इसका नहीं, ये इसका ये इक्विलिब्रियम में रहता है, ये दोनों है ना, It's like a resonating हाँ, structure. एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम फॉर्म ओनली। All right. Last एक दो reaction and topic over. Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction usually we carry out in presence of AlCl3, catalyst AlCl3. The problem is aniline is a Lewis base and AlCl3 is a Lewis acid. तो दोनों के साथ एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं। देखो ये रिएक्शन, और यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको बॉन्ड कर रहा है फॉर्म। तो अगर आपका AlCl3 ही एनिलीन ने खा लिया तो आपका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होगा ही नहीं। सिंपली एनिलीन कैनॉट शो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। Perfectly clear? Any doubt in this? Go through this part. Can you explain again? We'll mark the reaction here. This lone pair
is reacting with AlCl3. So this is the coordinate bond form, you can see. So if AlCl3 is the main reagent of Friedel-Crafts, if it is getting consumed in the reaction, no further reaction is possible. So aniline cannot show for Friedel-Crafts reaction. We have completed the reaction. Last point is distinguishing test. हिंसबर्ग टेस्ट जो मैंने डिस्क्राइब किया था, फिर से सिंपल फॉर्म में फॉर्म लिख रहा हूं यहाँ पे, जस्ट अ रिवीजन बेसिकली. प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन. दूसरा रिएक्शन है अजोडाई टेस्ट. प्राइमरी अमाइन react with dilute HCl, cold HNO2 and beta naphthalene NaOH. They produce brilliant orange or red colored dye. Secondary and tertiary amine don't show any reaction. This is called distinguishing test. प्रैक्टिकल में आप लोग ये टेस्ट करने वाले हो. आपके पास अभी जो हैंडबुक आया है उसमें शायद ये टेस्ट ऑर्गेनिक के अंडर होगा भी. This